बच्चों, so let's read this question. The stoichiometry and solubility product of a salt with the solubility curve is given below, respectively. तो हमारे को stoichiometry and solubility product of a salt with solubility curve हमें दिया हुआ है, and this is the curve that is given to us. अगर आप curve को notice करें, we have been given concentration of x versus concentration of y का curve. And this is the curve which is of square or square of a number का ये curve हम लोग consider कर सकते हैं, right? When we talk about this curve, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, हमारे को कंपाउंड दिया हुआ है इन द फॉर्म एक्स वाई एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 मोलर क्यूब. बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एक्स वाई 3 and the solubility product is 1 multiplied by 10 to the power -9 molar cube, and C is xy2 4 multiplied by 10 to the power -9 molar cube, and D is x2y 2 multiplied by 10 raised to the power -9 molar cube. तो अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें, if we see this curve, तो अगर हम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x का अगर हमारा 1 है, तो हमारा y क्या है यहाँ पे? If x is 1 और y comes out to be 2, right? तो हम इसमें लिख सकते हैं that the product or the graph and the dimension of the salt would be x by 2, right? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो हम लोग अपना solubility प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? Solubility प्रोडक्ट which is denoted by KSP can be calculated using A plus, which is our cation to the power A, B minus which is our anion to the power B. ओके, अब इधर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? जो KSP है हमारा, इट रिप्रेजेंट्स द solubility constant, और वी कैन से solubility product constant. एंड जो हमारा A पॉजिटिव है विच इज आर cation, it represents obviously cation in aqueous solution. एंड जो हमारा B पॉजिटिव है, it is anion in aqueous solution. एंड जो हमारा A, B है, that would be our relative concentrations of A and B. Relative concentrations. Now let us start solving this question according to graph हमने अभी डिस्कस किया. अगर हमारा x अगर 1 है सपोज, तो हमारा जो concentration of y है that is equals to 2, and from the graph, तो हम लिख सकते हैं from the graph and dimension salt हमारा क्या होता है? xy2 निकल के आया है. तो कंसेंट्रेशन ऑफ x हमारी अगर है 1 multiplied by 10 raised to the power -3, तो concentration of y is equals to 2 multiplied by 10 raised to the power -3. And if we dissociate, right, xy2 in solid state, it will give us x2 plus as our cation in aqueous state plus moles of y minus in aqueous state. तो अगर हमारे को इसका KSP निकालना होगा, सो KSP एज डिस्कस्ड हमारा यहाँ पे cation क्या है? our cation is x2 plus multiplied by concentration of 2 multiplied by y minus, अभी हम इसके टर्म्स में नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट पुटिंग द वैल्यूज. तो हमारा कैटायन है हमारा यहाँ पे y माइनस, एंड यहाँ पे हमारे को रिलेटिव कंसंट्रेशन उसकी दी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका दिया हुआ है 2, विच विल बिकम द पावर नाउ टू y माइनस की पावर विच इज 2, y माइनस का स्क्वायर, एनायन का स्क्वायर. नाउ KSP हम लोग कैसे अब हम सिर्फ वैल्यूज रख देंगे. नाउ KSP कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 1 multiplied by 10 minus 3 multiplied by 2 multiplied by 10 to the power -3 to the power 2, right?
तो अगर हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मोलर क्यू। तो हमारा आंसर आ जाएगा, we can say that the solubility product of the salt is 4 multiplied by 10 raised to the power minus 9। हमारा करेक्ट आंसर वुड बी, पहले तो x by 2 होना चाहिए एंड इट इज 4 multiplied by 10 raised to the power minus 2 molar Q। अगर आपको ग्राफ में अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें इस चीज में दिया हुआ है ग्राफ इज कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट। एक्स की भी वैल्यू वही है जो वाई की है, तो हम ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं दैट अगर एक्स की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारी जो वाई की वैल्यू है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाई जो है इट इज 2। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अगर x की वैल्यू y है तो y शुड बी थ्राइस ऑफ द, अगर x की कंसेंट्रेशन 1 है तो y की इसके अकॉर्डिंग कंसेंट्रेशन होनी चाहिए 3, बट दैट इज नॉट ट्रू। एंड फॉर दिस केस इट कम्स आउट टू बी ट्रू, अगर x की कंसेंट्रेशन हमारी 1 है तो y की कंसेंट्रेशन हमारी आ रही है 2। एंड सिमिलरली इस केस के लिए भी हमारी चीजें ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें बात करें, सपोज हमने बात करी इस चीज की, अगर हमारी x की कंसेंट्रेशन 1 है तो हमारी y की कंसेंट्रेशन आनी चाहिए 0.5, विच इज नॉट ट्रू। इट इज कमिंग आउट टू बी इट इज कमिंग आउट टू बी 2 rather than 0.5। तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ये ऑप्शन सी ही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।